Hello students, how are you? I hope you all are okay. We are going to discuss question number 21 of exercise 15.1 probability class 10th. A load consists of 144 ball pens which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good. Okay. The shopkeeper was drawn one pen at random and given to her. What is the probability that she will buy it? So now the question is नूरी will buy pen. नूरी कब बाय करेगी जब पेन क्या होगा गुड. सो नंबर ऑफ गुड पेन्स नंबर ऑफ गुड पेन्स इक्वल्स टू 144 माइनस क्या कर दोगे 20 डिफेक्टिव हैं जो. तो आंसर कितना आएगा 124 पेन्स क्या है गुड. Number of total pens are total pens equals to 144. Probability that she will buy it is equals to favorable outcomes upon total outcomes. Yes या no? This is the formula. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 124 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 144. नाउ कैंसल या कट विद 4 31 3 and 6. So this is our final answer. Now move on to B part. B part is she will not buy it. She will not buy it. So B part is she will not buy it. Now suppose इसको अपनों ने लिखा probability of E. E means she will buy it. So we know that probability of happen and not happen is always equals to 1. अगर E probability of E है she will buy it, she will या E event है she will buy it, तो E डैश क्या होगा she will not going to buy it. Yes या no? We know that that is equals to 1. So probability of E dash is equals to 1 minus probability of E by this formula. 1 minus PE कितना है 31 upon 36. Yes या no? Now LCM 36 minus 31. The answer will be 5 upon 36. This is the probability that she will not buy the pen. Now move on to question number 22. Question number 22. Two dice, one blue and one grey, are thrown at randomly at the same time. Complete the following table. Event of two dice. Sum is of two dice is 2, 3, 4. ये अपने को टेबल कंप्लीट करनी है. Class, whenever we roll one dice, total outcomes are 6. But now 2 dice are there. So total outcomes, total possible outcomes equals to 6 की पावर 2 हो जाता है, दैट इज 36. अगर 3 डाइस हो तो 6 की पावर 3 2 1 6. टोटल पॉसिबल आउटकम सपोज करो मैंने फर्स्ट डाई रोल किया 1 आया, सेकंड वाले पे भी 1, फर्स्ट वाले पे 1 ही रखो, सेकंड वाले पे 2, फर्स्ट वाले पे 1 देन 3. इसी तरह से ये टेबल कंप्लीट करो 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2. So like this, these are the total outcomes. Now let even is our sum of two dice is 3, क्योंकि उसमें आगे पूछा हुआ ना इस टेबल को कंप्लीट करो. इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि 2 होगा 1 upon 36. ये गिवन है, ये कंप्लीट टेबल अपने को करनी है. एंड 8 इज ऑल्सो गिवन 5 upon 36. ये 2 वैल्यूज गिवन है. नाउ इवन सम ऑफ टू डाइस इज 3. चेक करो डाइस का सम 3 कहाँ पे होता है 1 और 1 2, ये तो नहीं है, एक ये रहा, और एंड 2 and 1, और किसी पे भी 3 नहीं है. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 1 2 and
2 1. It means number of favorable outcomes equals to कितने हुए क्लास 2. टोटल कितने हैं 36. तो probability of E1 is equals to 2 upon 36. The answer will be 1 upon 18. This is the final answer. Same sum we want 4. तो चेक करो 4 किस किस पे आ रहा है, इस पे डबल डैश लगा लो ऐसे 1 3 और कोई 3 1 भी 4 होता है 2 and 2. तो टोटल पॉसिबल डबल वाले कितने हुए 1 3 2 2 3 1. इट मीन्स 3 पॉसिबल आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 3 upon 36. द आंसर विल बी 1 upon 12. नाउ वी वांट सम विल बी 5. सम क्या हो 5. तो 5 चेक करो 1 और 4 होता है 5. ओके देन 1 4 है तो 4 1 भी 5 होता है. 2 3 5 है तो 3 2 भी 5 होगा. यस या नो. तो टोटल कितने हो जाएंगे 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 4 upon 36 मीन्स 1 upon 9. क्लियर. आप यहाँ तक भी रख सकते हो. नाउ फोर्थ E4 वी वॉन्ट सम इज 6. तो चेक करो सम 6 किस पे है 1 और 5 पे 6, 3 and 3, 2 and 4, 4 and 2, 5 and 1. ऐसे एक डायगोनल बन रहा है चेक करो 4 पे ये डायगोनल आ रहा था. ओके तो 1 2 3 4 5 टोटल केसेस आर 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल्स टू 5 upon 36. क्लियर. सिमिलरली वी वॉन्ट सम इज 7. सम इज 7. तो ये चेक करो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. टोटल आर 3 4 5 6. So our answer will be 6 upon 36, or you can write 1 upon 6. क्लियर. 8 का उसने आंसर दे ही रखा है तो ये सारे पहले उसमें फिल कर दो. 1 upon 18 और you can write 2 upon 36, 3 upon 36, 4 upon 36, 6 वाले क्या 5 upon 36 एंड 7 क्या 6 upon 36. क्लियर. now we want our sum is 9. तो just check sum we want 9. तो कहाँ से होता है 9. देखो 4 और 5 9, 3 and 6 9, 5 and 4 9, 6 and 3 9. Total outcomes 1 2 3 4. So probability is 4 upon 36. सम इज 10 सम चाहिए तो ये चेक करो 5 and 5, 4 and 6, 6 and 4. और कोई आउटकम नो. सो 3 upon 36. 11 5 and 6 is 11, 6 and 5 are 11. और कोई आउटकम तो नहीं है तो टोटल आउटकम्स आर 2. सो 2 upon 36. नाउ यू वांट सम इज 12. आप किसी का भी सम चेक करो 12 आ रहा है. यस आ रहा है ना. ये लास्ट में तो ओनली वन आउटकम का सम 12 है. सो आवर आंसर विल बी 1 upon 36. दीज आर द आंसर पॉसिबल आंसर. ओके अब इनको टेबल में फिल कर दो. 4 upon 36, 3 upon 36, 2 upon 36 एंड 1 upon 36. एक्चुअली 1 से स्टार्ट होते हैं. ओके 2 3 4 5 6 6 पे अगेन फिर ये क्या होता है डिक्रीज 1 तक. ओके एग्जाम में अगर आंसर चेक करना हो तो. दिस इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर. नाउ दिस इज द बी पार्ट ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबिलिटीज केम ना 2 3 4 5 अभी आप लोगों ने फाइंड की थी आंसर में. देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1 upon 11. क्या अभी 1 upon 11 आई थी.
No na? Do you agree? Justify your answer. No, we are not agree because probability is not 1 by 11. और ये आई क्यों नहीं वैसे सेम? because these events are yes anyone, these events are not equally likely इवेंट डिस्कस किए थे ना, जिनके आने की सेम पॉसिबिलिटी हो, तो सेम तो नहीं थी, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, दैट्स वाई इनका आंसर क्या हुआ, सेम नहीं आया. Now move on to question number 23. A game consists of tossing a coin, 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Noting है ये. Hanif wins if all tosses give the same result. Okay. So 1 coin को 3 times toss किया, 1 coin को 3 times. So class, if 1 coin is tossed 2 times, तो क्या आता है, head और tail. Clear? If toss 2 times, then 4 possibilities, head head, tail tail, head tail or tail head. But if we toss 3 times, then 2 raised to power 3, 8 possibilities. यहाँ पे कितनी थी, 2 raised to power 2, 4 possibilities. Here 2 raised to power 1, 2 possibilities. So total possibilities यहाँ पे कितनी आएंगी, 8. जितनी बार कॉइन को टॉस करो 2 की पावर n उतनी टोटल आउटकम्स बनते हैं. तो कई बार ये 8 आउटकम्स लिखने में स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है, अपने ऐसे लिखेंगे, हेड हेड, पहले आप 2 वाले लिख लो, टेल टेल, THT एंड टेल टेल. क्लियर? 8 आने हैं तो इन्हीं को 2 टाइम्स ऐसे लिख लो एक बार. अब एक बार इनके आगे H लगा दो, 3 टाइम्स है ना, और एक बार क्या लगा दो, टेल. आप चेक करोगे सारे आउटकम्स क्या होंगे, डिफरेंट. चेक कर लो, सारे आउटकम्स डिफरेंट है, कोई सेम तो नहीं है. एच 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 मीन्स तीनों हेड आए, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल. नाउ हनीफ विल लूज द गेम, और वो लॉस कब होगा गेम में, जब सेम ना आए, मीन्स ये दोनों नहीं आने चाहिए, ये पॉसिबिलिटी ना हो. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6, क्योंकि अगर ये आ जाते हैं तो हनीफ क्या हो जाएगा, विन कर जाएगा. सेम है ना सारे, देखो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये नहीं आने चाहिए, बाकी कुछ भी आए. टोटल कितने हैं, 8. सो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन total outcomes, 6 upon 8. The answer will be 6 upon 8. The answer will be 3 upon 4. This is the final answer. Clear? ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 8, बट अगर बाई चांस मिस्टेक हो रही हो तो 2 टाइम्स लिख के एक बार हेड लगा दो, H आगे लगा दो और सेकेंड टाइम टेल, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी. Now question number 24 is, a die is thrown twice, 2 times फेंका. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 कभी भी ना आए. So 1 डाइस को अगर 2 टाइम्स थ्रो करते हो तब भी 36 आउटकम्स, और 2 डाइस को 1 टाइम रोल करते हो देन ऑल्सो 36 आउटकम्स. So number of possible outcomes is equals to 1 1 1 2, ऐसे करके कंप्लीट कर. सो ये कंप्लीट कर लिए. टोटल आउटकम्स आर 36. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 कभी भी ना आए. तो क्लास चेक करो 5 कितने टाइम्स नहीं आ रहा.
ओके 1 2 3 4 इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 5 आ रहा है 5 6 7 8 9 10 ये भी काउंट नहीं करेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसमें तो सभी में ही आ रहा है तो इसको छोड़ दो 21 22 23 24 इसमें भी आ रहा है 25 सो फेवरेबल आउटकम्स आर 25 आप ही शो कर देना कि दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स ओके सो probability of that is equals to favorable upon total. So this is your final answer. B part 5 will come up at least once. At least once means एक बार तो पक्का है तो चेक करो 2 बार आता तब भी चल जाएगा 1 जो जो लीव किए थे 2 3 4 और ये वाली पूरी लाइन 10 एंड 11 सो प्रोबेबिलिटी दैट इसको E1 दे दो इसको E2 11/36 काउंट भी कर सकते थे इसका एक सेकंड मेथड भी है मेथड सेकंड देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना था 25/36 मीन्स ये क्या कहता था 5 आए ही ना 5 आए ही ना तो इसका E डैश क्या होगा मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 टाइम एटलीस्ट ये सेकंड मेथड है एटलीस्ट 1 टाइम आए तो यही तो पूछा हुआ है तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E डैश इक्वल्स टू 1 होता है तो E डैश मतलब एटलीस्ट 1 निकालना है तो 1 माइनस पी ई कर दे 1 माइनस पी ई कितना था 25/20 36 एलसीएम लोगे द आंसर विल बी 11/36 इट इज़ योर चॉइस आप काउंट करके भी कर सकते हो तब आपको फेवरेबल आउटकम शो करने हैं otherwise you can do like this. Now move on to question number 25. Now question number 25 is which of the following are correct? Give reasons for your answer. First part, if two coins are tossed simultaneously एक साथ there are 3 possible outcomes head head tail tail and one of each and the probability is 1/3 क्या होती है no ना no because total possible answer या you can say outcomes total possible outcomes equals to head 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 tail tail head and tail tail so number of outcomes equals to 4 probability of getting each probability equals to 1 upon कितनी आती है क्लास 1 upon each आने की 1/4 so the answer is not correct okay B part when a die is thrown there are 2 possible outcomes odd and even yes correct why correct because when a die is thrown तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 या तो इवन होंगे या ओड वाले कितने हैं क्लास 1 3 5 इवन वाले 2 4 6 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर 3 फेवरेबल है टोटल 6 सो आंसर विल बी 1/2 probability of getting even number even 3 नंबर्स ही हैं और टोटल 6 1/2 और यही क्वेश्चन में बोला है कि 2 पॉसिबल आउट वैसे तो 6 हो सकते हैं लेकिन उसमें ओड और इवन में बोला तो यस या तो ओड होंगे या इवन सो गेटिंग ऑफ ओड इज 1/2 आंसर भी कितना आ रहा है अपना 1/2 सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट क्लियर Thank you for watching probability complete with each and every solution.